Good morning, student. Today I am taking the another topic of nature of management. Nature of management. Nature of management means management. We can say that management is of different types. We can distribute this thing in three parts. Management as an science, management as an art, or management as an profession. First one, management as a science. Science means the definition of science. Actually, the science is the systematic body of knowledge which is based on the experiment, facts, and figures. What is the definition of science? It can be defined as the systematic body of knowledge based on facts, events, finding, and experiments. ये साइंस होता है जो कि एक स्पेसिफिक बॉडी ऑफ नॉलेज है जो अपने फाइंडिंग्स और एक्सपेरिमेंट्स कर करके रिजल्ट्स फाइंड आउट करके देता है. नाउ हाउ वी कैन से दैट इट इज मैनेजमेंट इज अ साइंस और नॉट. तो फॉर दैट वी हैव टू डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंस. व्हाट आर दीज कैरेक्टरिस्टिक्स? फर्स्ट वन इज सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज. सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज मीन्स एक परफेक्ट सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है जो कि एक्सपेरिमेंट्स और फाइंडिंग्स बार बार एक्सपेरिमेंट्स करके ही बता पाते हैं कि इफ यू आर डाइल्यूटिंग दिस सॉल्यूशन विद दिस सॉल्यूशन यू विल गेट द दिस रिजल्ट्स. वो करने के बाद ही हम कह पाते हैं. उसको बार बार करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, उसी बेस पे हमारे डिसीजंस डिपेंड रहते हैं. तो can this feature or characteristics present in management? Yes, this feature is present in management. Management भी किसी काम को अगर वो बार बार करके देखते हैं तो ही अपने फाइंडिंग्स और रिजल्ट्स बता पाते हैं और उस हिसाब से मैनेजर्स जो रहते हैं, ऑनर्स रहते हैं, सीईओ रहते हैं, वो अपने डिसीजंस ले पाते हैं. ओके, the another characteristics of the science is principle based on experiment. Science, each and every thing is based on their experiments. Science is based on that principle which is based on experiment, and then they can say that yes, this is the solution and this is the result, this is the finding. We are getting this result after doing this process. Again, another question is that is this present in management? From my side, it is partially present in management. All things are not included, all the things are not doing again and again in management. All things are not based on experiments. So, it is partially present. Next characteristic is universal applicability, validity. If science say that if you are adding these two things, these two solution, you will get the green solution, you will get the yellow, you will get the burning part. Yes, this can be accepted by whole around the world. But in management, it's not necessary because it is based on creativity. If you are doing something, some work on your way, another one doing that the same thing on his own way. So again, it is not present in management, it is partially one. So in conclusion part, on comparing all these features, only one is present in this management, that is systematic body of knowledge. So in conclusion part, we can say that management is not pure science. It is not exact science. It is inexact science, or we can say that it is a social science. Okay. Next one is our management. Next thing is management is an art. What is art? Some creation from your side, your inner qualities, inherent qualities. What is the definition of that art? It is defined as systematic body of knowledge which requires skill, creativity and practice to get
परफेक्शन। क्या होता है? एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है जो कि एक स्किल्स रिक्वायर करती है। स्किल जरूरी है, इसमें खुद की क्रिएटिविटी होना चाहिए और प्रैक्टिस बार बार। किसी चीज को हम अगर परफेक्शन चाहते हैं तो उसको बार बार करके देखते हैं, दैट इज एन आर्ट। कम टू द फीचर्स ऑफ दिस आर्ट। फर्स्ट वन इज systematic body of knowledge. Yes, in the last one we discussed about that. Yes, systematic body of knowledge is present in management also and in art also, because in art if you want to draw something you will have to follow the systematic way, proper way. कहीं भी कुछ भी, जैसे किसी चीज को ड्रॉ करना है, किसी काम को करना है, तो उसकी एक टेक्निक होती है, उसकी एक वे ऑफ डूइंग थिंग होता है, तो एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है जो कि आर्ट में भी मिलता है और मैनेजमेंट में भी मिलता है। तो वी कैन से दैट यस, दिस फीचर इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। सेकेंड वन इज पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन मीन्स इफ यू वांट टू ड्रॉ समथिंग, तो वो आपके अंदर कुछ करना चाहते हो तो आपकी क्रिएटिविटी वहां पे शो होती है। आप अपने खुद अंदर से पर्सनल स्किल्स को इन्वॉल्व करते हो, उसमें यूज करते हो। और सेम थिंग इज हैपेंड इन मैनेजमेंट। सो मेनी मैनेजर्स आर अवेलेबल ऑन द सेम लाइन ऑफ चैनल, लाइक प्रोडक्शन, लाइक सेल्स, मार्केटिंग। अब different managers है, but all are not same. Someone is using his own skills and quality, another one is using his own skills and quality, and the level of, if we are discussing the level of that sales, they have the different level. जरूरी नहीं है कि सब ने 100 यूनिट सेल किया, किसी ने 100 किया, किसी ने 150 किया, किसी ने 80 किया। तो what is that? They are using their personal application based skills. उन्होंने अपनी खुद की एक क्वालिटी को यूज किया है जो कि हर पर्सन में होना चाहिए, तभी वो ग्रो कर सकता है। तो दिस फीचर इज आल्सो प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। थर्ड वन इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस क्रिएटिविटी। यस, अगर आप किसी चीज को ड्रॉ कर रहे हो, किसी काम को कर रहे हो, परफेक्शन कब आता है? बार बार करने से उसको परफेक्शन मिलता है। और मैनेजमेंट में भी यही है। अगर आपको कोई प्रोजेक्ट मिला है, आपने कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, तो फर्स्ट टाइम आपको कुछ डिफिकल्टी फेस करना होगी। सेकंड टाइम आप उसको थोड़ा और बूस्ट अप करके थोड़ा और अच्छा करने की कोशिश करोगे। जो भी लूप होल रहे थे पिछले प्रोजेक्ट में, उसको यूज करते हुए, उस वीकनेस को हटाते हुए इस प्रोजेक्ट में थोड़ा और अच्छा करोगे, नेक्स्ट प्रोजेक्ट में थोड़ा और बेस्ट करोगे। और एक टाइम ऐसा आएगा यू विल टेक द डिसीजन ऑन फिंगर टिप्स। नो, अगर ये वर्क है ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा, इसका रिजल्ट ये आएगा, ये प्रॉब्लम्स आएगी, ये चीजें हमको बेस्ट मिलेगी, ये डाउनफॉल में जाएगी। आप कब बोल पाएंगे? व्हेन यू डू दैट थिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन, एज वी कैन से दैट ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। दैट सेम थिंग इज दैट इट इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। आर्ट तभी होता है जब बार बार करके देखते हैं, तभी तो आप परफेक्ट आर्टिस्ट बनते हैं। मैनेजमेंट भी वही। So this feature is also present in this management. आर्ट के जो तीनों फीचर्स है, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन एंड बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दिस थ्री, ऑन when we are comparing all these three things with the management features, we can say that yes, management is an art. Okay. देखना। The next thing is management as a profession. हमारा जो नेचर ऑफ मैनेजमेंट है उसमें फर्स्ट पार्ट क्या था? एज एन साइंस, एज एन आर्ट, एंड थर्ड वन इज एज एन प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या होता है? प्रोफेशन वो होता है, इट इज डिफाइंड एज एन ऑक्यूपेशन backed by the specialized knowledge and training in which entry is entry is blocked. मतलब जो भी ऑक्यूपेशन है उसके पीछे एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज होता है। प्रोफेशन लाइक इफ यू आर गोइंग फॉर MBBS, you will have to go for that type of special knowledge.
उस तरह का स्पेशल नॉलेज और क्वालिटी आप में होना चाहिए। वो क्वालिफिकेशन, वो एजुकेशन आपको लेना पड़ेगा, तभी आप डॉक्टर बन पाएंगे। इफ यू वांट टू बिकम एन लॉयर, लॉयर बनने के लिए आपको उस फील्ड का स्पेशलाइज्ड नॉलेज लेना होगा, तो आप वो बन पाएंगे। ओके, तो दैट इज प्रोफेशन। नाउ characteristics or features of profession. It is well defined body of knowledge. Yes, well defined body of knowledge means CA, MBA, that one is MBBS lawyer. तो एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज है, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है कि हाँ डॉक्टर है तो एक लेवल होता है डॉक्टर का, मैनेजर है तो मैनेजर का एक लेवल होता है। हम उसको किसी लेबर क्लास और मैनेजर को, किसी एम्प्लॉय को, छोटे एम्प्लॉय को और डॉक्टर को, या नॉन डॉक्टर और डॉक्टर को कंपेयर नहीं कर सकते। उसमें कुछ स्पेशल वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होता है डॉक्टर में। हम जाके, जैसे आई एम अ टीचर, लाइक हियर आई एम टेकिंग योर क्लासेस एंड आई एम टीचर, मैं वहाँ ऑपरेशन थिएटर में जाके ऑपरेशन नहीं कर सकता। वो क्वालिटी मुझ में नहीं है, वो क्वालिफिकेशन, वो वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज मेरे पास नहीं है, क्योंकि मेरी पढ़ाई, मेरा क्वालिफिकेशन डिफर करता है उस क्वालिफिकेशन से। तो एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होता है। ओके, नेक्स्ट फीचर इज रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। यस, कोई एमबीए है तो एमबीए उस फील्ड से अपग्रेड होके ही एमबीए करेगा। सीए है, सीए उस सब्जेक्ट से क्वालिफिकेशन लेके ही सीए बन पाएगा। ऐसा नहीं है कि सीए है तो डॉक्टर बन गया, या डॉक्टर है तो दूसरा कोई क्वालिफिकेशन लेके वो ज्वाइन करके नहीं मैं डॉक्टर हूँ, मैं प्रैक्टिस स्टार्ट कर देता हूँ। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। एमबीबीएस का काम अलग है, सीए का काम अलग है, लॉयर का काम अलग है। These are based on their qualification, well-defined body of knowledge. So in this one, restricted entry will be there. Okay. Third one is presence of professional association. Presence of professional association means if you want to become CA, तो CA के लिए खुद का एक एसोसिएशन होता है जहाँ से आपको वो क्वालिफिकेशन अर्न करके डिग्री मिलता है, वहाँ से एक प्रोफेशनल डिग्री आपको मिलेगा। एमबीबीएस करना है तो जो AIM जो है ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन, वो वहाँ पे इन्वॉल्व होता है। लॉयर का उनका खुद का अलग से एसोसिएशन है। एडमिनिस्ट्रेशन में एमबीएस के लिए उनका खुद का अलग से एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे एमबीए का कोई एसोसिएशन नहीं है, तो प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन, यहाँ ये वाला फीचर मैनेजमेंट में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। ओके, तो दिस वन इज नॉट प्रेजेंट इन दिस मैनेजमेंट। लास्ट वन इज एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड। हर एक का अपना एक एथिकल कोड होता है, हर प्रोफेशन का। ये वाला फीचर मैनेजमेंट में नहीं इन्वॉल्व है, यहाँ मैनेजमेंट में नहीं पाया जाता है। So on the basis of all these four features, after comparing all these four features, we can say that only one feature is present in this management, that is well-defined body of knowledge. Remaining one are not present in this one, so we cannot say that management is a profession. Okay, after comparing all these three things, the perfection is that management is an art. We cannot say that management is a profession. On the part of science, we can say that management is an inexact science. It's not pure science. We can say that that is a social science. Okay. For today, it's enough today. Enough for today. In next video, I will come again with different topic. Thank you.